All right. So hi guys, good morning. So we have this is NAPGC 5 and Poddar, right? Right. So right. Great. Good morning, guys. Now, before we start today's lecture and today's discussion, couple of points that I wanted to share and highlight with you guys. Well, first of all, let me talk about yesterday's homework. Now, one of the things that I did also highlight as part of the video explanations was the calculation part. ठीक है? So कल का जो homework था उसमें the questions that were there had really horrible calculations. ठीक है? FBS section है, subjective section है, data जो दिया हुआ था, it really took a lot of time. It was not, and I also highlighted that it is not something which you should take as a benchmark when it comes to exams, when it comes to the tests that you are going to face. Questions are going to be designed in this manner that data is easy to work with. ठीक है, the data that is given, the data that is being asked, values आपस में cancel out हो रहे होंगे और calculations पे मेहनत करवाना would not be the primary objective. The objective will be to actually test your conceptual skill. So even if you pick pick the previous year examinations of JEE Advanced and Mains, you will not find questions जिसमें ऐसे calculations आपको दिए जा रहे हैं. Now, having said this, a very obvious question that comes to your mind is then why is this there in the booklet? Like why are these questions here? Well, the thing is that booklet is made out of a collection of or curation of good questions from different books only. ठीक है, different books से pick and drop करके एक set of questions बनाए जाते हैं which kind of bring in a learning curve. Now this is something that leads to sometimes questions जहाँ पर data थोड़ा सा difficulty है, and that is also something which is a part of lot of books also. जब आप books वगैरह से पढ़ोगे, ठीक है, तो कहीं में ऐसे calculations आते हैं especially subjective questions में. So again, as I said, don't worry about that part. It is there in the booklet and it continues to be there in the booklet for this reason itself that sometimes students do get those questions across and work with the calculations, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है स्टूडेंट्स कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते जाते हैं कई बार, तो थोड़ा बहुत उसका भी प्रैक्टिस हो जाता है. So with all these reasons kept in mind, the questions are still there in the booklet, and obviously I take it upon me to ensure that students know about this fact. They don't get nervous or kind of scared with those kind of 3-4 decimal place calculations. ऐसा टेस्ट में या एग्जाम में नहीं आता है. ठीक है, इसमें इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप कि चौथे डेसिमल प्लेस की वैल्यू नहीं ली तो आंसर ही चेंज हो गया. तो ऐसा नहीं होगा in case of examinations. It's just that this homework was something which was in particularly a little more than required intensive in terms of calculations. All right, so this was one thing. Then the second thing which I also wanted to talk about is the practice test that I've shared with you guys. These are the two practice tests that I've shared, and these are something which are to be done by yourself at home with complete honesty. And take your time, do some preparation beforehand if required, and try to give this in a timed manner. ठीक है, आधा घंटे के आसपास का time है उनका, so they don't take much of your time, but they will actually give you an idea that apart from learning the concepts, are you also able to do questions in a time-bound manner? Are you able to get the final answer? And as I said, don't do one question करा और फिर आंसर चेक कर लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन करा फिर आंसर चेक किया, वैसे मत करना. Give it like a test only. ठीक है, yeah, do a self assessment. Don't need to kind of send me the assignments or working, because I honestly will not have the bandwidth to check आप लोगों के options one by one. ठीक है, उसी में एक्चुअली हिंट भी है एंड सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं उस पीडीएफ में ही नीचे. So in case once you are done giving the test, you can analyze what are the mistakes that you made and all. And if you get stuck with the questions, कुछ आपको नहीं समझ में आया despite reading the hint and all, then yes, you are more than welcome to discuss in the groups or ask me personally. Yeah, which brings me to brings me to the third point as well that I wanted to talk about today, is that WhatsApp group has been created for doing doubt discussions. Now yesterday I had created the groups for different locations, right? I had kind of divided the
बैचेस एज पर देयर लोकेशन. सो दादर का एक अलग ग्रुप है, अंधेरी का एक अलग ग्रुप है, बोरीवली का एक अलग ग्रुप है, प्रोदार का भी एक अलग ग्रुप है. अब इन ग्रुप्स पे द पर्पस इज दैट स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर्स डाउट एज वेल. ठीक है, सो प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन करो. आप लोग डाउट्स पूछो आपस में, मुझसे भी पूछो. इफ यू गेट स्टक आई विल आंसर इट देयर. आई विल आल्सो रोप इन सम other faculties also into the groups, so that on days when I might get stuck and not be able to answer the doubts, most of them I will. But then if at all it is a requirement, then the other teachers who are there on the group can also help you with the doubt discussion. So this is something which I would request you guys to be proactively participating in. Jaise Andheri mein kal there was an excellent response, like students really actually learned from each other and posted and helped each other's doubts. Okay? So Udar ka group, I'm not sure that how many students are there, but you can kickstart. ठीक है, थोड़ा सा कैटलिस्ट चाहिए होता है to start discussing with each other. You guys will also get to know each other well. हाँ, I will keep on continuing the posting the video explanations. ठीक है, अभी DPP का देखता हूँ. DPP में actually वो आपके सामने वहाँ पर नीचे hints and solutions लगे हुए हैं, तो उसमें I might not even I might not go question by question, but उसमें selected जो मुझे लगा कि हाँ ये question ऐसा था जिसमें I would want to really convey a message or something, I'll make it part of the video explanations. So don't worry. अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का हम लोग जाते जाए. ठीक है, धीरे धीरे अभी आई विल शिफ्ट फोकस टू द प्रायोरिटी क्वेश्चंस. अभी तो कैसा है, वी आर ऑल टुगेदर एंड डूइंग ईच क्वेश्चन वन बाय वन, बट विद टाइम स्पेंट आई विल इंश्योर दैट हम लोग प्रायोरिटी डाउट डिस्कशन पहले कर रहे हैं. ठीक है, जो प्रैक्टिस टेस्ट मैंने दिया है वो आप लोग वीकेंड तक कर लो. ठीक है, डोंट वरी. ठीक है, ऑल राइट. नाउ सो बेस्ड ऑन दिस अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं. ठीक है, लेट मी take a quick recap of what we have done till date in mole concept, and a very short recap only. Oh my bad. रोहन, टेस्ट आप लोग वीकेंड तक दे दो अपने हिसाब से, जो ये प्रैक्टिस टेस्ट दिया है मैंने. All right. So let's understand the stoichiometry वाला part. ठीक है, stoichiometry में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली अभी तक, ध्यान से ऑब्जर्व करना. हम लोगों ने सिंपल रिएक्शंस एंड उनका एनालिसिस देख लिया है, समझ लिया है. ठीक है, देन इसमें अब धीरे धीरे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई गई, एंड देन केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आप लोगों के लिए मैंने इंट्रोड्यूस करा. ठीक है, सो केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट हो, बट जहां पर होता है वहां पर आप ही को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. इट इज समथिंग वेयर you yourself will have to develop this as a part of your problem solving technique, that you identify when it's a case of limiting reagent, and then accordingly do all the calculations with respect to the limiting reagent. Then इसके बाद में हम लोगों ने सीरीज रिएक्शन का डिस्कस करा. सीरीज रिएक्शन या सीक्वेंस रिएक्शन जो हम बोलते हैं. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर हम लोगों ने कंबाइंड क्वेश्चंस भी करे कुछ सीरीज एंड लिमिटिंग रिएजेंट वाले. देन लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरेलल रिएक्शंस का भी डिस्कशन किया. इफ यू हैव द सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स, देन there can be different products via different reactions, and we call them as parallel reactions. Then last class mein we spent a good amount of time on understanding the case of incomplete reaction. ठीक है, इसके पहले इन सब टॉपिक्स जो मैंने ऊपर लिखे हैं, जिनको मैंने ब्रैकेट में हाईलाइट करा है, we were going with an assumption that the reaction is going to completion. ठीक है, तो अगर limiting reagent है तो वो पूरा consume हो रहा है, and based on this we used to solve the questions. But
फिर लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन दैट फॉर वट एवर रीजन वी मे कम अक्रॉस क्वेश्चंस जहां पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो. ठीक है. Okay, so there is a doubt from Ranveer saying that if there are same products and different reactants, right? So then again, it can be, it will not be counted as a case of parallel reaction. It will be something else. ठीक है. Now, केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन के ऊपर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था एंड उसके मैं एक दो एग्जांपल आज और कराता हूँ तो इट विल काइंड ऑफ रिवाइज द केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन फॉर यू गाइज. एंड इसी में हम लोगों ने एक्चुअली ये परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट सीखा था विच इज नथिंग बट अ फैंसी वर्ड ऑफ सेइंग परसेंटेज कंप्लीशन कितना हुआ है. यहाँ पर जो रिएक्शंस थे वो सब 100% कंप्लीट हो रहे थे. यहाँ पर द रिएक्शन माइट बी लेस देन 100% कंप्लीट, तो कितना परसेंटेज कंप्लीट हो रहा है उसका कैलकुलेशन इज व्हाट इज परसेंटेज यील्ड. ठीक है. तो कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ अपॉन इनिशियली कितना था, that is what the percentage yield is. And then based on product side also we can determine the yield part. ठीक है. आज के डिस्कशन में मैं एक दो एग्जांपल ये इनकम्प्लीट रिएक्शन वाले केस की भी लूंगा एंड देन आई विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पीओएसी. ठीक है. तो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द एग्जांपल्स. And okay, we have a couple of doubts. Kudrat ka kuch doubt hai that do we have to video lectures further? Well, yes, I would advise you. ठीक है. जब मैं आपको होमवर्क देता हूँ ना तो उसके साथ में जब मुझे लगेगा कि आपको हाँ वीडियो लेक्चर्स के लिए एक बार रेफर करके आना चाहिए तो आई विल डेफिनेटली आस्क यू टू वॉच दोज वीडियो लेक्चर्स. ठीक है. नाउ एक और डाउट है ऋषित का. इन इनकम्प्लीट रिएक्शन इफ देयर आर टू और मोर प्रोडक्ट्स डू दे फॉर्म एट द सेम रेट? रेट बाबा, रेट का कॉन्सेप्ट अभी से कहाँ से आ गया ऋषित? अभी हम लोग काफी दूर है रेट के कॉन्सेप्ट से. कितने टाइम में कितना होगा वो टाइम बेस्ड कैलकुलेशन हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं. सो वो एक अलग चैप्टर होता है कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स वेयर वी विल डिस्कस. ठीक है. अभी रेट पे मत आओ. देन वेद का एक डाउट है, व्हाट इफ देयर इज वन bid reactant? What is bid reactant? Then how will we identify LR? What is, I did not get you with what is one bid reactant? One big reactant. मतलब एक ही रिएक्टेंट है तो वही लिमिटिंग रिएजेंट हुआ ना. लिमिटिंग रिएजेंट तो हम लोग जब सोचते हैं ना जब मल्टीपल रिएक्टेंट्स हो रहे हैं. अगर किसी रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है तो वही का वही लिमिटिंग रिएजेंट है, बस उसी के हिसाब से सॉल्व करो. ठीक है. All right, so let's start today's discussion. I'll take one question to recap this percentage yield wala part. So the question is it looks a straightforward one, but I would find that आप लोग यहाँ पर ना careless mistake कर रहे होगे. So let's see if you make that careless mistake or if you are able to avoid it. So pure O2 is converted to ozone, ठीक है, O3 in a reaction mixture or in a reaction chamber. ठीक है. If at a certain time average molecular mass of reaction mixture, ठीक है. ये एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? ठीक है. जिसको नहीं याद है तो एक बार नोट्स में पीछे जाके रिकैप करो. आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हो अपने. ठीक है. एंड ऐसा मत करना कि पुराना भूलते जा रहे हो. पुराना साथ में रहना चाहिए याद. सो एवरेज molecular mass of the reaction mixture is 40 gram per mole. Then determine percentage completion of reaction. ठीक है. ये क्वेश्चन है आपके सामने. अब आप ट्राई करो.
ऑल राइट, तो कुछ कुछ आंसर आने स्टार्ट हुए हैं। ऑल राइट, सो 50-50, हाँ कुछ बच्चों के 50-50 आने लग गए। दैट इज द इनकरेक्ट आंसर। क्या पूछ रहे हो तुम? व्हाट इज द थर्ड वर्ड इन द सेकंड लाइन? रिएक्शन चेम्बर। चेम्बर डाल दो यार, रिएक्शन वेसल डाल दो। ऑल राइट, 50-50 इज इनकरेक्ट आंसर। अंशुल, आपका भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ 50-50 गलत क्यों हो रहा है। सी, यहाँ पर नोटिस करना, देयर इज अ रिएक्शन दैट इज हैपनिंग। दिस इज द रिएक्शन दैट इज हैपनिंग। 3O2 gives 2O3। आपका 50-50 आंसर कब होता? मतलब अगर मैं अलग से कहीं से O2 और कहीं से O3 मिला रहा होता, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 32 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 48 है और एवरेज 40 है, तो आप बोलते कि हाँ ये तो बीच में ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों 50-50 अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। बट दैट इज नॉट हाउ वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। वी आर नॉट मिक्सिंग द टू थिंग्स। यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है, तो आप केयरफुली उस चीज को एनालाइज करो। काशवित, ऐसे रेंज में मत आंसर दो यार। गिव मी एन एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। हाँ, अभी तक तो किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। यश, विवेक, अंश, शुभम, नॉट द करेक्ट आंसर येट। आयुष्मिता, आपने 60-40 आंसर दिया है, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आई द क्वेश्चन वाज टू डिटरमाइन परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। हाँ, साई का करेक्ट आंसर आया है। साई ने पहला सही आंसर दिया है। बाकी शुभांग, हर्षल, भाविक, नॉट येट करेक्ट। अली, नॉट करेक्ट येट। अंशुल ने अब करेक्ट दिया है। ठीक है, हेमंत मंथन का नहीं आया। ऑल राइट, ठीक है, सो आई हैव गिवन इनफ टाइम। अब एक बार ऑब्जर्व करना सोल्यूशन कैसा है। ठीक है, यहाँ पर दिस रिएक्शन इज हैपनिंग एंड लिखा हुआ है कि हम लोग प्योर O2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में, ठीक है, लेट मी assume the moles of O2 to be 1। ठीक है, आप कोई वेरिएबल भी ले सकते हो। let the moles of O2 be equal to 1। ठीक है, ये स्टार्ट में कर दिया मैंने। ऐसा क्यों करा? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ऐसा मोल्स का कोई हार्ड डेटा नहीं दिया हुआ है।
इस क्वेश्चन में बस इतना दिया है कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 40 रहेगा, ठीक है, एंड परसेंटेज कंप्लीशन पूछा है। आप वेरिएबल से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं वेरिएबल से भी करके दिखाऊंगा, बट लेट मी फर्स्ट डू द इजी बिट। लेट मी स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। अब ठीक है, परसेंटेज कंप्लीशन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि पूरा एंड ऑफ रिएक्शन तो होगा नहीं, ठीक है, तो मतलब ये मत कर देना कि एंड में चले गए, ये पूरा खत्म हो गया और इसके 2/3 मोल्स बन गए, ठीक है, तो यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गो टू द एंड। वाई? बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है ना कि परसेंटेज कंप्लीशन निकालना है। तो कैसे आप एनालिसिस करेंगे, मतलब रिएक्शन कहीं बीच में रुक रहा है, ठीक है, कहीं फाइनल जा रहा है बीच में, एंड में नहीं जा रहा है, एंड यहाँ पर जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो आपको दिया हुआ है, इट इज 40। ओके, सो लेट्स एनालाइज द रिएक्शन। अगर O2 के यहाँ पे नोटिस करना, मैं मान लेता हूँ कि X मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है, तो कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी मोल्स ऑफ O3 आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड? अगर X मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो कितने मोल्स ऑफ O2 के X मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, तो O3 के कितने बनेंगे? राइट, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ना, इनका ध्यान दो, तो यहाँ पे आंसर आएगा कि ये 2/3x बन जाएगा, ठीक है, मोल्स इतने बन जाएंगे। गुड, तो अब यहाँ पर O2 के 1 - x मोल्स रहेंगे और O3 के 2/3x मोल्स रहेंगे, एंड इस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 40 है। तो अब मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का, विच इज टोटल मास बाय टोटल मोल्स, और यू कैन सी हाउ डू वी राइट दैट, N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। तो दोनों के मोल्स कितने हैं, 1 - x एंड 2/3x, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है मोल्स को, तो 1 - x इंटू 32 प्लस 2/3x इंटू 48, ये इनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट हो गए, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो इनके मास हमने ऊपर न्यूमरेटर में डाल दिए, और ये आपको दिया हुआ है 40। इससे आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपका 3/5 और 0.6 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब परसेंटेज कंप्लीशन इज एक्चुअली क्या होगा, परसेंटेज कंप्लीशन का फॉर्मूला मोल्स रिएक्टेड, ठीक है, अपॉन इनिशियल मोल्स, ठीक है, मोल्स रिएक्टेड ऑफ O2 अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ O2, यही रिएक्टेंट है तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है, एक ही रिएक्टेंट है, तो ये 0.6 अपॉन 1 इंटू 100%, यू गेट योर आंसर एज 60%, ठीक है। ऑलराइट, तो रोहन दोबारा एक बार एनालिसिस देखो ना, ये स्टार्ट था और ये एक्स कंज्यूम हो गया, तो बचेगा कितना, 1 - x ही तो बचेगा, ठीक है। अच्छा, लेट मी शो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, मान लो मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, लेट मी यूज ब्लू इंक है, लेट मी से कि मोल्स ऑफ O2 n है, ठीक है। एक बार इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ कि जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोग एक स्नैपशॉट ले ही लो, ठीक है। इफ यू गाइज वांट टू सेव द सॉल्यूशन विद यू, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई विल नाउ एक्सप्लेन इट यूजिंग वेरिएबल ऑल्सो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं 1 मोल से ही लूँ, ठीक है। अगर मैं लेट्स से n मोल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो भी मेरा आंसर आएगा, नोटिस करना कैसे, लेट द मोल्स ऑफ O2 बी n, तो ये n मोल्स हो गए, ठीक है, एंड फिर मान लो x रिएक्ट हुए, 2/3x प्रोड्यूस हुए, तो ये कितना हो जाएगा, n - x एंड 2/3x, ठीक है, राइट, ये एंड वाले पार्ट पे तो मेरे को जाना ही नहीं है। अब इस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 40 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वही मोल्स यूज करूंगा, मोल्स हो जाएंगे n - x एंड 2/3x, एंड मास हो जाएगा n - x इंटू 32 प्लस 2/3x इंटू 32, सॉरी 48। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा x का वैल्यू नहीं आएगा अलग से, n का वैल्यू भी नहीं आएगा अलग से, बट मेरे पास x अपॉन n का वैल्यू आ जाएगा, और जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मैं कैलकुलेशन शो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आप करके देखना, आपको x अपॉन n मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट यू नीडेड, ठीक है, बिकॉज x इज एक्चुअली द
moles reacted and n is actually the initial moles. ठीक है, तो आपका आंसर तब भी एक सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, so this was the same question done using a variable. ऑल राइट, ये समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं. ठीक है, एज अ इट्स अगेन, ये ऐसा नहीं था कि इजी क्वेश्चन था. ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट द आंसर. जिनका आ गया वो अच्छी बात है, मतलब यू आर गेटिंग अ गुड ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट. एक और क्वेश्चन कराता हूँ, एंड दिस टाइम अगेन इट इज अ मिक्स ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्नड. ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, व्हेन आई से कॉन्सेप्ट मतलब ये वाले जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करे थे ना, तो इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक. ठीक है, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है, डिफिकल्ट है, इजी नहीं है. हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है. सो 31 ग्राम each P4 and O2 are mixed. ठीक है, 31 ग्राम of P4 and O2 are mixed to give P4O6 and P4O10 in 1:1 mole ratio. ठीक है, determine percentage of excess reactant left. ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, ट्राई करो. ऑल राइट, कुछ कुछ बच्चों ने ट्राई करा है. एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज 31. हाँ, लेट मी, atomic weight of phosphorus is 31. अच्छा, आई होप ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको इतना रियलाइज हो गया होगा that this is parallel reaction plus limiting reagent का कॉन्सेप्ट. ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का कैसे पता पड़ा? क्योंकि पूछा है एक्सेस रिएक्टेंट कितना बचा है, तो मतलब कोई ना कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट है इनमें से.
एंड पैरेलल के बारे में कैसे पता पड़ा? सेम रिएक्टेंट से वी आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है. Now if you do want to treat it as a parallel reaction, you can, or you can actually kind of combine it as well, ठीक है. यहाँ पे नोटिस करना, मैं चलो हिंट दे देता हूँ एक और, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा और इजी हो टू वर्क विद, ठीक है. यहाँ पर P4 plus O2 is giving P4O6, ठीक है, and P4 plus 5O2 is giving P4O10, ठीक है. एक्चुअली पैरेलल रिएक्शन है, बट क्योंकि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कि P4O6 एंड P4O10 जो है वो 1:1 के रेशियो में है, तो मैं इनके दोनों के कोफिशिएंट 1 लिख सकता हूँ, ठीक है. 1:1 रेशियो गिवन, 1:1 रेशियो बाय मोल्स गिवन इन क्वेश्चन. तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली यहाँ पर, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम लास्ट क्लास, मेथड 2 यूज कर रहा हूँ, कंबाइंड रिएक्शन, ठीक है, कंबाइंड रिएक्शन लिख के. बट ये कंबाइंड रिएक्शन में मैंने क्या और क्यों करा इसको कंबाइन, ठीक है. आप वैसे मेथड 1 से भी कर सकते हो, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है उससे, बट मेथड 2 से यहाँ पर रिलेटिवली इजी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है दैट किस रेशियो में प्रोडक्ट्स हैं. तो अगर मुझे अब कंबाइंड फॉर्म लिखना है तो दैट विल सिंपली बी 2P4 plus 8O2. ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसको मुझे वर्कआउट करना है, ठीक है. अब इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने, इसके बाद ट्राई करो, ठीक है. एटलीस्ट ये तो बताते जाओ मुझे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा, अगर आपको ये हिंट समझ में आ गया है तो. हाँ, गुड. ऑक्सीजन गैस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट. ऑक्सीजन इज लिमिटिंग. सी, अंशुल का क्वेश्चन है कि सर ये नहीं समझ में आया कि पैरेलल रिएक्शन है या सिंगल रिएक्शन है, ठीक है. सी, द थिंग इज कि पैरेलल रिएक्शन को अपन कंबाइन जब करके ये बोल सकते हैं सिंगल रिएक्शन, जब हमें उनके प्रोडक्ट्स के रेशियो का मोल्स का रेशियो पता हो, ठीक है. तो सिंस दैट इंफॉर्मेशन वाज गिवन इन द क्वेश्चन, वी वर एबल टू डू इट एज पार्ट ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है. अगर मान लो यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि ये 2:3 के रेशियो में, 1:1 में नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 कोफिशिएंट लगाता और फिर बैलेंसिंग करता, ठीक है. So I will have to be cautious while I'm combining reactions. ठीक है. चलो इतना तो सबका आंसर ठीक आ रहा है दैट ऑक्सीजन गैस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बट हाँ, अभी तक परसेंट अंशुल का अभी तक सही आंसर आया है. गुड अंशुल. अंशुल हैज गिवन द करेक्ट आंसर फॉर हाउ मच ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट इज लेफ्ट, ठीक है. बाकी अभी तक किसी का सही नहीं आया है, ठीक है. एंड आप मोल्स में करोगे, मास में करोगे, आंसर सेम आएगा त्रिदिब, डोंट वरी, ठीक है. लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट. अली, मैंने ये नहीं पूछा है कितना रिएक्ट हुआ, मैंने ये पूछा है कितना बचा है, ठीक है. तो ये चीजों का ध्यान रखो, ठीक है. ये केयरलेस मिस्टेक्स आपकी धीरे धीरे मैं करवाऊंगा जब आप टेस्ट दोगे. मैं एक्चुअली एक ऑप्शन डालूंगा विच विल बी द इनकरेक्ट वन एज वेल, ठीक है. तो ध्यान रखना इन चीजों का. एंड हाँ, अभी तक अंशुल और अली दो का ही सही आंसर आया है. नहीं, भाविक, त्रिदेव, आप दोनों का सही आंसर नहीं है अभी तक. हर्षितांशु, आपने शायद थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया है, मतलब योर आंसर इज वेरी क्लोज टू द एक्चुअल आंसर, बट शायद थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया है. ऋषित, सही नहीं है आपका आंसर. इतना हिंट देने के बाद तो आपको आना चाहिए था, ठीक है. लेट मी एक्चुअली सॉल्व इट.
ये अब आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि ये मास दिया हुआ है इन दोनों का, ठीक है, ये 31 ग्राम से और ये भी 31 ग्राम से। तो अगर मैं मोल्स फिगर आउट करूँ तो ये 31/4 इंटू 31 है एंड ये 31/32 है। तो अगर मैं इनका स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करूँ तो ये 31/4 इंटू 31/2 एंड ये 31/32/8, ठीक है। डेफिनेटली दीज टू आर नॉट इक्वल एंड इफ यू विल रियलाइज इन दोनों में दिस इज द स्मॉलर वन, तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। तो ऑक्सीजन गैस बिकम्स माय लिमिटिंग रिएजेंट। अब मैं इसका एनालिसिस कर लेता हूँ, ठीक है। 2p4 plus 8O2 is giving p4O6 plus p4O10, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना स्टार्ट में इसका 31/4 इंटू 31 मोल्स हैं और इसके 31/32 मोल्स हैं, ये स्टार्ट में है। एंड आपको ये दिया हुआ है दैट O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। सो अब क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो ये 31/32 मोल्स पूरे रिएक्ट हो गए O2 के। तो एंड में O2 कितना आ जाएगा, 0। लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। अब उससे कितना P4 रिएक्ट हुआ है वो मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। एज यू कैन सी P4 एंड O2 के कोएफिशिएंट आर 2 and 8। तो अगर ये 31/32 मोल्स रिएक्ट हुआ है तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ P4 आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड वो मैं बता सकता हूँ। सो दिस कम्स आउट टू बी, एंड यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। सो -1/4 इंटू 31/32। तो ये बच कितना जाएगा एंड में P4, ठीक है। इनिशियली इट वाज 31/4 इंटू 31 एंड कंज्यूम हो रहा है 31/4 इंटू 32। तो इतना मेरा P4 का मोल्स बच जाएंगे, राइट। मोल्स ऑफ P4 लेफ्ट इज इक्वल टू 31/4, ब्रैकेट में ले लिया मैंने कॉमन, 1/31 माइनस 1/32, so that is 31/4 इंटू 1/32 इंटू 31, ठीक है। एंड मोल्स ऑफ P4 इनिशियली कितने थे, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था 31 ग्राम्स दिया था एंड उसका मॉलिक्यूलर वेट 31 इंटू 4 था, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ P4 लेफ्ट, ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ P4 लेफ्ट। आप मोल्स में भी कर सकते हो, मास में भी कर सकते हो, सेम आंसर आ जाएगा। मोल्स ऑफ P4 इनिशियली इंटू 100%, सो यू सॉल्व फॉर इट, ये आ जाएगा आपका 31/4 into 1/32 into 31, and this will be 31/4 into 31 into 100%. So you get the answer as 100/32%, which is roughly 3.125%. That is how much the excess reactant is left. ठीक है, ये समझ में आया एनालिसिस, ये आना चाहिए था आपको, मतलब जो ट्रिकी पार्ट था क्वेश्चन का वो तो मैंने आपको हिंट में बता ही दिया था। ठीक है, सो गुड, आई थिंक नाउ इन एक दो क्वेश्चन से पुराने जो कॉन्सेप्ट थे उनका एक रिकैप हो गया है, तो हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट मी come to the next topic, which is principle of atomic conservation, POAC, ठीक है। This is something which is the topic of today. Now this is something मैं एक बार ऊपर ले जाता हूँ, in addition to what we have been doing. So आज हम लोग POAC as a separate subtopic सीखेंगे। So notice करना that अभी तक जो हमने टॉपिक्स करे हैं, ठीक है, POC के पहले वाले, इन सब में एक चीज कॉमन थी, ठीक है। इन सब के सब टॉपिक्स में एक पर्टिकुलर चीज कॉमन थी। कैन यू लेट मी नो, मतलब कुछ अगर आपको स्ट्राइक हो रहा है तो क्या कॉमन था इनमें। राइट, यश ने सही आंसर दिया है दैट इन सब क्वेश्चंस में बैलेंस्ड रिएक्शन
का नॉलेज था। ठीक है, ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये सब यू नो कंटेन्ड द नॉलेज ऑफ बैलेंस्ड रिएक्शन। और फिर हम लोग क्या करते थे, इस रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एस्टैब्लिश करते थे और अपना एनालिसिस करते थे। ठीक है, आज वी विल टॉक अबाउट पीओएसी का कॉन्सेप्ट, एंड उसमें आप लोग नोटिस करना दैट बैलेंस्ड रिएक्शन तो छोड़ो, हमको शायद रिएक्शन के बारे में ही नॉलेज नहीं रहेगी पूरी। ठीक है, so despite the lack of knowledge of reaction we'll still be able to solve and we'll still be able to establish a relationship between reactants and products। ठीक है, देखना किस तरीके से we'll be working on it। so observe करना principle of atomic conservation। so what it says is, मैं इसका statement लिख देता हूँ यहाँ पर। statement बड़ा सिंपल सा है, atoms of an element are conserved in a chemical reaction। ठीक है, इसका ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरे तरीके से इसको मैं एक और इंटरप्रिटेशन लेकर रीड कर सकता हूँ। ठीक है, दैट फॉर एन एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, रिएक्टेंट साइड, is equal to number of atoms of element on right hand side, ये जो प्रोडक्ट साइड पे है। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज इन अदर वर्ड्स बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। बैलेंसिंग में हम यही तो करते थे कि दोनों तरफ यू नो एटम्स को हम लोग बराबर बराबर करते हैं हर एक एलिमेंट के, वन बाय वन। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर नोटिस करना, यार आप लोग बीच में रैंडमली ऐसे डाउट डालोगे तो फिर हाउ डू आई देन लाइक कंटिन्यू विद माय डिस्कशन। मतलब मैं क्वेश्चन पीओएसी का पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे मोलारिटी मोलालिटी पूछोगे तो डू यू एक्सपेक्ट मी टू स्टॉप इन बिटवीन द फ्लो ऑफ द लेक्चर एंड देन कंटिन्यू विद व्हाटएवर द एड हॉक डाउट दैट यू जस्ट पॉप्ड अप? At least keep something contextual, no? All right, now as I was saying कि कोई एक रिएक्शन है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट दे रिमेन कंजर्व्ड। लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिएक्टेंट्स हैं मतलब एज एन एलिमेंट के एटम्स हैं वही राइट हैंड साइड पे भी होंगे। तो इससे हम लोग एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाएंगे बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल लूंगा तो आपको पूरी क्लैरिटी आएगी। तो लेट मी स्टार्ट टेकिंग द एग्जांपल्स एंड बेस्ड ऑन विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये रिएक्शन है, CH4 plus O2 is giving CO2 plus H2O। ठीक है, and deliberately I have not balanced it। ठीक है, I have deliberately not balanced it। If I balance, then of course mole upon coefficient equal to mole upon coefficient करके I can establish a relationship between reactants and products। ठीक है, but यहाँ पर notice करना that I am still able to establish a relationship between reactants and products by using this concept of POAC। ठीक है, it is similar to balancing what you do। तो यहाँ पर notice करना, let me apply POAC on element by element, कार्बन पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, if I apply POAC on carbon, then what I mean to say is that moles of carbon on left hand side is equal to moles of carbon on right hand side। ठीक है,
नाउ व्हाट वी हैव ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे कार्बन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पर CH4 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मुझे मोल्स ऑफ CH4 मिल जाए कहीं से, ठीक है, तो उसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मोल्स ऑफ कार्बन एटम मिल जाएंगे। वाई? बिकॉज एज यू कैन सी कि CH4 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, तो इसके लिए अगर मैं CH4 के मोल्स मान लो 10 मोल है CH4 के, तो कार्बन के मोल्स भी 10 ही हो जाएंगे, राइट? अच्छा, सिमिलरली राइट हैंड साइड पर कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पर कार्बन इज प्रेजेंट इन CO2। ठीक है, एंड अगर कोई मुझे मोल्स ऑफ CO2 दे दे तो उससे मैं मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकता हूँ, वापस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप नोटिस करो एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन के अंदर एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन है, सॉरी एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के अंदर एक एक एटम कार्बन है। तो अगर मुझे CO2 के मोल्स मिल जाएंगे, ऐसे X मोल्स हैं, तो कार्बन के भी X ही मोल्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या करा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया है। ठीक है, एक और बार देखना। ठीक है, लेट मी अप्लाई POAC और अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो इट विल काइंड ऑफ हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। सो लेट्स से POAC ऑन ऑक्सीजन अप्लाई कर रहा हूँ इस बार। पिछली बार मैंने किस पे अप्लाई करा था, कार्बन पे, इस बार अप्लाई कर रहा हूँ ऑक्सीजन पर। ठीक है, और अब देखना यहाँ पर इस बार ऑक्सीजन क्यों लिया है, बिकॉज ऑक्सीजन मल्टीपल एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और जो स्टेटमेंट है वो इसी तरीके से रहेगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ O2 में। ठीक है, तो अगर मुझे कहीं से मोल्स ऑफ O2 मिल जाएंगे तो मुझे उससे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आइटम निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एज यू कैन सी एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो इफ आई मल्टीप्लाई दैट बाय 2 आई विल गेट द टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑलराइट, अब से राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन एक्चुअली CO2 और H2O दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों से जितना ऑक्सीजन आएगा वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू ऐड, बट एक एक करके चलते हैं अभी। तो पहले आप नोटिस करो, अगर आपको कोई मोल्स ऑफ CO2 दे देगा, ठीक है, तो आप उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहोगे ताकि आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मिल जाए जो कि CO2 से आ रहे हैं, राइट? सो सबको समझ में आया कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो CO2 के 10 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन के तो 20 एटम्स हो गए ना, 20 मोल एटम्स हो गए ना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अब अगर आप नोटिस करोगे मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, अगर मोल्स ऑफ H2O आपको मिल जाएंगे तो इसको मैं सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन के एक और H2O के एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन का एटम है, राइट? So based on this, we get the relationship again between reactants and products without balancing the reaction. All right. So this is something which comes of use a lot of times जब आपके सामने बैलेंस्ड इक्वेशन या फिर रिएक्शन का नॉलेज इनसफिशिएंट होता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, दिस टाइम अ न्यूमेरिकल एग्जांपल व्हिच विल हेल्प यू आंसर दिस मच बेटर। तो अगर आप लोगों के सामने बुकलेट है तो आई वुड रेकमेंड बुकलेट में FBS का क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई FBS का क्वेश्चन नंबर 32, एक बार आप लोग पढ़ो एंड देन आई विल डिस्कस विद यू गाइस। पेज नंबर आई थिंक 135, 134 या 135 पर है बुकलेट में।
हाँ, सो कुदरत आपका सही है, इंटरप्रिटेशन दैट पीओएसी इज द कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर एटम्स ओनली। ठीक है, इट इज एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एटम्स देमसेल्व्स। मास तो ऑटोमेटिकली कंजर्व होता है, हम तो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स भी कंजर्व हो रहे हैं। आयुष्विता मोल्स पूछा है आपने, पता नहीं 11.6 ग्राम्स लिखा है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने। हाँ, ऋतुजा का आंसर सही आया है। शुभांग, अंशुल, आप दोनों के आंसर सही नहीं है। शुभांग थोड़ी सी केयरलेस मिस्टेक करी है आपने, एक बार देखो। विवेक सही आंसर नहीं है, अंशुल का सही आंसर है। मंथन सही नहीं है आंसर। नहीं, हर्षित अंशु सही नहीं है, हर्षिल का भी सही नहीं है। जिष्णु का सही है। सारा आपका सही नहीं है। शुभांग आपका सही है। यश का नहीं है, ऋषिकेश का सही है, यश का नहीं है, स्वास्तिक का सही है, अंश का सही है। राइट, सो 1/60, ठीक है, काफी लोगों ने अभी आंसर कर दिया है। सो 1/60 दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, गुड, अगर आप लोगों को ये अप्लाई करना आ गया है कॉन्सेप्ट तो। जिन लोगों को नहीं आया या उन्होंने केयरलेस मिस्टेक करी है, तो यहाँ पे नोटिस करना, क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा है, दैट यू हैव K2CO3 and this is some 27.6 grams, and this K2CO3, it undergoes some reactions. We don't know what kind of reactions, but the question says it goes some reactions, a series of reactions, and at the end the product that is formed is K2ZN3 FeCN6 whole twice. ठीक है, some very complex product has is formed। ठीक है, एंड आपको इसके मोल्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस। अब क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है, यहाँ पे समझना, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मुझे रिएक्शन पता ही नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिएक्शन implies we should use POAC। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस तो तरीका है ही नहीं, बैलेंस इक्वेशन है ही नहीं, तो हमें POAC ही यूज करके वर्क करना चाहिए। ठीक है, नाउ वंस यू आर clear on using POC, then the next crucial step for you is to identify the element on which POAC is to be applied। ठीक है, so यहाँ पर like which element should we apply POAC on? हाँ, so that's what I was expecting. There are two answers that are coming. There is something, some students who are giving potassium, there are some students who are giving carbon। ठीक है, and both are राइट टू से कि हाँ हम दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट अब यहाँ पे नोटिस करना, द करेक्ट आंसर इज कार्बन एक्चुअली। व्हाई? बिकॉज आप क्वेश्चन का लैंग्वेज रीड करो,
question says that carbon is being conserved. ठीक है, जब क्वेश्चन आपको अलग से हिंट दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो आप कि जितना कार्बन था रिएक्टेंट का वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे मुझे रियलाइज होगा दैट कार्बन पर ही मुझे पीओएसी लगाना है। ठीक है, पोटेशियम वाज आल्सो गुड चॉइस, बट पोटेशियम के बारे में नहीं बताया क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ यू अप्लाई पीओएसी। ठीक है, number of moles of carbon on LHS is equal to moles of carbon on RHS। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन किस में प्रेजेंट है? K2CO3 में। तो अगर मुझे कहीं से मोल्स ऑफ K2CO3 मिल गए तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे मोल्स ऑफ कार्बन आ जाए? द आंसर इज 1, बिकॉज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही कार्बन एटम है। Similarly, right hand side में the product that I have is K2ZN3FeCN6 whole twice। तो अगर मुझे कहीं से मोल्स ऑफ ये कंपाउंड मिल गए तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम मिल जाए? यहाँ पर आप नोटिस करो ना, इसके एक मॉलिक्यूल में एज यू कैन सी 12 कार्बन के एटम्स हैं। ठीक है, पोटेशियम 2 है, जिंक 3 है, आयरन 2 है, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर 12 ईच। So this is the way in which you'll have to establish the relationship between reactants and products। अब आपके लिए कहानी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लो तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल्स मिल जाएंगे, एंड दिस इज द अननोन दैट यू हैव टू फाइंड द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1/60 आ जाता है। ठीक है, अच्छे कैलकुलेशंस है, बुरे कैलकुलेशंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। ठीक है, अच्छा, विवेक का क्वेश्चन है कि सर देन कार्बन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। वेल नॉट ऐसा नहीं होता। हम लोग जब रिएक्टेंट्स होते हैं तो उनमें लिमिटिंग रिएजेंट का बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कैसा हो रहा है, समहाउ कार्बन इज बीइंग कंजर्व्ड, मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसके बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं है, बट यहाँ से K2CO3 किसी के साथ रिएक्ट कराया होगा समथिंग के साथ में, फिर उसमें कार्बन आ गया। ठीक है, समथिंग समथिंग साथ में और भी होंगे, मुझे पता नहीं है, बट फिर अगले रिएक्शन में वो जो समथिंग समथिंग बना जिसमें कार्बन है उसको किसी और चीज के साथ में R2 के साथ में रिएक्ट कराया, तो वापस से यहाँ पर समथिंग समथिंग बना जिसमें कार्बन आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा कार्बन आ गया। तो मुझे क्या है, रिएक्शन की पूरी नॉलेज नहीं है, बट मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जो कार्बन था, ठीक है, जितना क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो कार्बन यहाँ पर था वही कार्बन यहाँ पर है, वही कार्बन यहाँ पर है, वो कार्बन कंजर्व होता जा रहा है। ठीक है, हाँ, मतलब पोटेशियम के लिए भी आप बोल सकते हो, बट पोटेशियम के लिए डेटा नहीं दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ऐसा बोला हुआ है कि कार्बन कंजर्व हो रहा है, तो फिर मैं कार्बन पे लगाऊंगा ना। Why would I go against the information that is given in the question? ठीक है, and yes, Manan, a very important point you raised that it is advisable to stick in fractions or do numericals in decimals। मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ, फ्रैक्शन में वर्क करो, ज्यादा आसान रहेगा। डेसिमल्स में वर्क करोगे आपके बहुत ज्यादा चांस रहेंगे केयरलेस मिस्टेक करने के। ठीक है, स्टिक विद फ्रैक्शंस। All right, let me give one more question। ठीक है, and this is again from your booklet only। Get equipped to मेंस का क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। ठीक है, एंड कंसिडर दिस कि मैं हूं ही नहीं, तो मुझसे पूछना मत कि सर क्वेश्चन में ये समझ नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। जो भी है वो आपके सामने है, एंड वो सफिशिएंट है। उस क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर कर सकते हो।
राइट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 130 पेज पर है भाविक है। हम्म, राइट, जिनका आ गया है वो अच्छी बात है। गुड। ठीक है, जिनका नहीं आया है वो एक बार क्विकली यहाँ पर ऑब्जर्व कर लो। इनफैक्ट जिनका आ गया है, आई वुड रेकमेंड कि आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, जिनका आ गया है, आई वुड रेकमेंड कि आप लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करो। लेट मी कीप यू गाइज एंगेज्ड टिल आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। सो एक्सपर्टीज अटेनर, ठीक है, एक्सपर्टीज अटेनर जो सेक्शन है, ठीक है, अब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जा रहे हो, तो नाउ यू कैन मूव ऑन टू दिस सेक्शन। ये आपका पेज 143 पर रहेगा आई थिंक क्वेश्चन। ठीक है, पेज 143 पर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जिनका आ गया है वही लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक है, जिनका नहीं आया है आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करो। दिस गेट इक्विप टू मेन का 12th क्वेश्चन। इसमें अब आप नोटिस करना आपको कैसा दिया हुआ है। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट की तरह ही ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को समझने का। तो सल्फर को बर्न करके SO2 बनाया है। ठीक है, पहला रिएक्शन समझ में आ गया मुझे, ये 8 ग्राम्स दिया हुआ है एंड बेस्ड ऑन विच SO2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा दिया हुआ है कि SO2 प्लस क्लोरीन वाटर, इससे कुछ तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बन रहा है। ठीक है, अब टू बी ऑनेस्ट मुझे पता ही नहीं है कि क्लोरीन वाटर होता क्या है। ठीक है, फॉर मी द इंफॉर्मेशन इज दैट स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन डालते हैं, तो कहीं वो तो नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग आई डो नॉट नो, मुझे रिएक्शन का नॉलेज ही नहीं है कि ये क्लोरीन वाटर है क्या। बट ठीक है, कुछ हो रहा होगा रिएक्शन। एंड देन उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इसको हम लोग जब बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं तो उससे बेरियम सल्फेट बन रहा है एंड इसके मोल्स मुझसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो अब मेरे लिए द थिंग इज दैट आई एम राइट नाउ स्टक कि मुझे क्वेश्चन का नॉलेज ही नहीं है। बस इतना है कि कुछ कुछ होता जा रहा है और स्टार्ट सल्फर से करा था। ठीक है, स्टार्ट सल्फर से करा और एंड में बेरियम सल्फेट बना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। नाउ तो अगेन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आई विल अप्लाई पीओएसी। अब पीओएसी मैं किस एलिमेंट पर अप्लाई करूं? व्हाट शुड बी द एलिमेंट जिस पर मैं पीओएसी अप्लाई करूं? राइट, एज यू कैन सी मेरे पास चॉइस ही नहीं है, बस सल्फर ही दिख रहा है कॉमन। ठीक है, अच्छा, इसमें someone may raise a technical question saying that कि सर इसमें तो ऐसा लिखा नहीं है कि सल्फर कंजर्व्ड है। हो सकता है बीच में किसी और साइड प्रोडक्ट में सल्फर चला गया हो, हमें तो रिएक्शन ही नहीं पता है। ठीक है, अब प्लीज अंडरस्टैंड दैट मुझे ऑप्शन लाना है, मुझे आंसर लाना है। ठीक है, मेरे सामने 4 ऑप्शन है, 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज है, कोई ऐसा ई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है मेरे सामने कि डेटा इनसफिशिएंट। राइट, ऐसा एक ई ऑप्शन नहीं है कि द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। मुझे 4 ऑप्शन में से आंसर लेके आना है एंड समटाइम्स द क्वेश्चंस आर नॉट ऐसे बुलेट प्रूफ, नॉट रोबस्ट कि उसमें आप लूप होल नहीं निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को लूप होल निकालना होगा इस क्वेश्चन में, तो दे माइट कम अप एंड से कि सर इसमें तो नहीं लिखा है सल्फर कंजर्व्ड है। हो सकता है सल्फर बाय प्रोडक्ट हो किसी और कंपाउंड में। राइट, सो आई वुड देन आस्क यू नॉट टू इंडल्ज इनटू दिस, ट्राइंग टू मेक श्योर कि हाँ हम तो गलतियां निकालना शुरू करेंगे। यू विल कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस नॉट इवन इन द बुकलेट। आप कोई अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ोगे ना, तो उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लूपहोल्स आ जाते हैं। ठीक है, सो इट्स गुड इफ यू आइडेंटिफाई, बट अदरवाइज यू वर्क विद द डेटा दैट इज गिवन टू यू। ठीक है,
सो यहाँ पर हम लोग पीओएसी ऑन सल्फर निकालेंगे. सो अब इस पर हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर यू हैव मोल्स ऑफ सल्फर, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सल्फर एटम्स आ गए. एंड राइट हैंड साइड पर वी हैव बेरियम सल्फेट, जिसके भी मोल्स को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है, क्योंकि एक ही सल्फर है इसके मॉलिक्यूल के अंदर. सो आई विल गेट माय आंसर दैट 1 into 8/32 is equal to 1 into moles. So I'll get my answer of moles as 1/4. ठीक है. ऑल राइट. सो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया है. अभी एक्सपर्टीज अटेनर वाला क्वेश्चन ट्राई करो. अभी तक तो किसी ने सही आंसर नहीं दिया एक्सपर्टीज अटेनर वाले क्वेश्चन का. हाँ रोहन, मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करो. सल्फर जितना था वो बेरियम सल्फेट में चला गया, तो दोनों से आपने टोटल ये मोल्स ऑफ सल्फर ऑन लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना, एंड ये मोल्स ऑफ सल्फर ऑन राइट हैंड साइड हो गया. दोनों को इक्वेट कर लिया. कहाँ अटक गए इसमें, क्या नहीं समझ में आया? ये 8 ग्राम्स दिया हुआ है ना सल्फर का मास. हाँ हाँ भाविक, आपकी बात सही है. मतलब मुझे एक्चुअली पता है क्लोरीन वाटर क्या होता है, कि क्लोरीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उससे रिएक्शन क्या होगा वो मुझे पता भी है. बट मैं कैसा बोला हूँ आप लोगों को कि लेट मी स्टेप इनटू द शूज ऑफ अ स्टूडेंट जिसको रिएक्शन के बारे में आइडिया नहीं है क्लोरीन वाटर क्या है. तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग पीओएसी. समझ में आया? ठीक है, जिनको अब समझ में आ गया वो एक्सपर्टीज का क्वेश्चन 12 करो. पेज 143 पर है, 143 या 144 जो भी हो आसपास देख लेना. एंड अभी तक तो किसी ने सही आंसर दिया नहीं है मुझे. हाँ शुभम, जो दिया हुआ है ना वही क्वेश्चन है. ठीक है, मुझे भी पता नहीं है ब्रोमिनेशन क्या होता है, मुझे भी पता नहीं है वर्ड्स क्या होता है. वैसे मुझे पता है बट मैं बताऊंगा नहीं, बिकॉज आई एम अगेन सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ अ स्टूडेंट. कि लिख दिया कि देयर इज ब्रोमिनेशन, देयर इज वर्ड्स रिएक्शन. अब मेरे को पता ही नहीं है कि वर्ड्स रिएक्शन होता क्या है, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट यू कैन स्टिल गेट द आंसर बाय अप्लाइंग पीओएसी. ट्राई करो. ठीक है. एंड लेट मी डू वन थिंग. एक्चुअली शायद हो सकता है आपके आंसर किसी स्टूडेंट्स के गलत आ रहे हो, उसका रीजन हो सकता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, यहाँ पर एक नोट की तरह लिख लेना. ठीक है, अवॉइड अप्लाइंग पीओएसी ऑन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, इन दो एलिमेंट्स पर आई वुड रेकमेंड यू टू अवॉइड, क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इतने कॉमन एलिमेंट्स हैं, दे आर वेरी फ्रीक्वेंटली पार्ट ऑफ साइड प्रोडक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, तो फिर उसमें कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज साइड प्रोडक्ट्स में कार्बन सॉरी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जा सकता है. ठीक है, सो ये आप एक ध्यान रखना. ठीक है. हाँ, क्या बोल रहे हो अली, तुम्हें ये 1/60 का कैलकुलेशन कैसे नहीं समझ में आ रहा? देखो यहाँ पर बताओ मुझे. ये मॉलिक्यूलर वेट लिख दो ना यहाँ पे. मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा इसका? 2 into 39 प्लस 12 प्लस 48. अभी क्या हो गया यहाँ पर? ऋतुजा, नहीं अभी तक आपका आंसर सही नहीं आया है. एक्सपर्टीज अटेनर वाला क्वेश्चन इसमें कैसा है देखो. क्वेश्चन अगर आप लोगों ने रीड कर लिया है, सो द क्वेश्चन इज कि हम लोग दो रिएक्शन करा रहे हैं जिससे C2H6 is getting converted into C4H10. ठीक है, C4H6 is being converted into C4H10 using two reactions, bromination and words. एंड इसमें एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये दे दिया है कि इनका यील्ड 50% एंड 80% है रेस्पेक्टिवली. ठीक है,
और इसका 58 ग्राम्स बनाने के लिए हमें कितना C2H6 लगेगा। ठीक है, अभी तक तो किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। 90% दिया है क्या? मैं एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन, रुको एक बार, कहाँ गया? अम, अच्छा, सॉरी, माय बैड। ओके ओके ओके, हो सकता है फिर तो यार आप लोगों के आंसर सही आ रहे हो। माय बैड, मैंने एक्चुअली डेटा गलत रीड कर लिया। दिस इज 55 ग्राम्स एंड दिस इज 90% एंड 85% यील्ड। ठीक है, माय बैड गाइस, मतलब मैंने एक्चुअली गलत डेटा रीड कर लिया। हो सकता है हाँ आपका 55.5 लीटर सही आंसर हो। ठीक है ठीक है, हो सकता है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट मी जस्ट क्विकली सॉल्व दिस। तो अब इसमें देखो, मुझे ब्रोमिनेशन नहीं पता है, मुझे वर्ड्स नहीं पता है, तो मैं पीओएसी किस पे लगाने वाला हूँ? कार्बन पे। ठीक है, हाँ हो सकता है 56 लीटर माइट बी द करेक्ट आंसर। लेट मी जस्ट चेक। सो मैं पीओएसी लगाने वाला हूँ कार्बन के ऊपर एंड व्हाई आई एम अवॉइडिंग ऑन हाइड्रोजन बिकॉज एज आई सेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स पे टिपिकली अवॉइड करना पीओएसी लगाना। दे टिपिकली फॉर्म साइड प्रोडक्ट्स और आर पार्ट ऑफ साइड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो अब यहाँ पर नोटिस करना, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 into moles of C2H6 should be equal to 4 into moles of C4H10। ये पीओएसी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, क्योंकि कार्बन जितना C2H6 में है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड C4H10 के मोल्स अगर मुझे दिए हैं तो मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे कार्बन एटम्स मिले ऑन राइट हैंड साइड, राइट। नाउ अब स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर नहीं जाना है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट आपको ये परसेंटेज यील्ड दिए हुए हैं रिएक्शंस के। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरा का पूरा कार्बन इधर जा रहा है। ठीक है, पहला रिएक्शन हुआ तो जितना कार्बन था उसका 90% आगे गया, फिर दूसरा रिएक्शन हुआ तो उसका 85% आगे गया। ठीक है, सो दैट्स हाउ आई विल be able to compute the moles of C2H6 that are required। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, इतना अच्छा कैलकुलेशन नहीं आएगा, बट इससे आपके मोल्स ऑफ C2H6 आ जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, लेट मी नो अगर आपको ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है। राइट, सो यहाँ पर इसकी वजह से 2.48 मोल्स टाइप्स बन जाएंगे। ठीक है, एंड 2.48 मोल्स मतलब वॉल्यूम एट एनटीपी कितना हो जाएगा? यू मल्टीप्लाई दिस बाय 22.4। ठीक है, 2.48 into 22.4 which will amount to how much? Around 55 liters ही आ जाएगा, 55.5 liters। ठीक है, सो कैसे आए? अरे ठीक है रोहन, मैं 22.4 ही करूंगा। तुम बार बार, तुम हर बार कैसे, मतलब कितने बार तुम एक ही डाउट को बार बार रिपीट करोगे यार? मैंने क्या बोला बुकलेट के क्वेश्चंस में, मैं हर बार 22.4 ही यूज करूंगा। हाँ, तो स्वास्थ्य यहाँ पे नोटिस करो, जितना कार्बन यहाँ पर है वही कार्बन राइट हैंड साइड पे भी जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कार्बन किस में? C2H6 में, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो C2H6 के मोल्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे मोल्स ऑफ कार्बन एटम हो गए ना। दिस इज मोल्स ऑफ कार्बन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एंड दिस 4 इंटू C4H10 के मोल्स। ठीक है, C4H10 के जो भी मोल्स होंगे, एक्स मोल्स हैं, तो उसमें कार्बन के कितने हो जाएंगे? 4x मोल्स। ठीक है, सो दिस इज द मोल्स ऑफ कार्बन ऑन राइट हैंड साइड।
ठीक है, अब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बट इसमें एडिशनल डेटा दिया हुआ है परसेंटेज यील्ड का, मतलब जितना लेफ्ट से राइट जा रहा है वो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, बीच में उसका परसेंटेज जा रहा है, और वो परसेंटेज आपको दिया हुआ है 90% एंड 85%, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो एंड एज अ रिजल्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व फॉर इट एंड गेट द आंसर। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, हाँ, भाविक पूछ रहा है व्हाई कांट वी टेक हाइड्रोजन, इज बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रोजन हो सकता है इनमें ना साइड प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व हो, तो वो कहीं और निकल गया, कहीं और चला गया, तो वो कंजर्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, टिपिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर एक्चुअली लॉट ऑफ टाइम्स पार्ट ऑफ साइड प्रोडक्ट्स एज वेल, तो इसलिए आई वुड अवॉइड। ठीक है, अगर चॉइस आ रही है यहाँ पर, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन दो चॉइस थे यहाँ पे पीओसी अप्लाई करने के लिए, आई वुड अवॉइड हाइड्रोजन, आई वुड अप्लाई इट ऑन कार्बन। ठीक है, हाँ मंथन। हाँ भाविक, आपकी बात एकदम सही है, कार्बन कैन ऑल्सो बी अ साइड प्रोडक्ट, बट अल्टीमेटली एज आई सेड आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ना। या तो आपको ब्रोमिनेशन और वर्ड्स रिएक्शन का नॉलेज हो, ठीक है, जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बताएंगे कि ब्रोमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, एंड उस रिएक्शन के बेसिस पे आपको ये नॉलेज पता पड़ेगी ऑर्गेनिक में कि हाँ इनमें कार्बन कंजर्व होता जाता है। बट अभी तो ऐसा है नहीं कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है, आपको पता नहीं है वर्ड्स रिएक्शन और ब्रोमिनेशन रिएक्शन क्या है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको ट्राई तो करना है, राइट? तो ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो फिर? ठीक है, ऑल राइट, सो आई थिंक या दीज वर द डाउट्स वर्थ अंडरस्टैंडिंग। जिष्णु भाई, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिर्फ कार्बन पे लगाना, कंपाउंड पे मत लगाने लग जाना, क्योंकि कंपाउंड यहाँ से वहां कंजर्व नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड आप लोगों को ब्रोमिनेशन एंड वर्ड्स रिएक्शन पढ़ाया जाएगा जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, सो डोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट राइट नाउ। ठीक है, ऑल राइट, सो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू वर्क विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा डेटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप लोग ट्राई करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग क्लास के बाद में भी मुझसे आंसर पूछ सकते हो उसका। ठीक है, 1 मोल मिक्सचर ऑफ N2 NO2 एंड N2O4, ठीक है, सबका कंबाइंड है ये 1 मोल, हैज अ मीन molecular mass of 55.4 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऑन हीटिंग N2O4 completely dissociates into NO2। ठीक है, रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, N2O4 is giving 2NO2, this reduce the average molecular weight to 39.57। ठीक है, डेटा इतना अच्छा नहीं है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मोल composition of
ओरिजिनल मिक्सचर, ठीक है, जो 1 मोल दिया है ये, इसमें कितने मोल्स किस किस के हैं वो आप डिटरमाइन करो, ट्राई करो। ठीक है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर आप इक्वेशंस क्रिएट कर लो, ठीक है, मतलब इक्वेशन एंड इक्वेशन के बाद में वेरिएबल्स, मतलब जैसे मान लो अगर आपने ए बी सी मोल्स मान लिए N2NO2 और N2O4 के, ठीक है, आप ऐसे स्टार्ट कर लिए, लेट द moles of N2NO2 and N2O4 be A, B and C respectively, ठीक है, एंड आपने 3 इक्वेशन भी बना ली, जैसे एक इक्वेशन तो ये हो गई A+B+C=1, तो ये पहली इक्वेशन हो गई, आपने 2 और इक्वेशन बना ली तो भी ठीक है, अच्छा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आ गई, बाकी तो खैर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कैलकुलेशंस है, तो देखो 2 और इक्वेशंस बना पा रहे हो क्या? तो ठीक है आयुष्मता, आपने सेकंड इक्वेशन भी सही बनाया है, एंड नहीं अली, आपका इक्वेशन नहीं सही है, मतलब हम्म नहीं शुभांग, रणवीर इक्वेशन बनाया है तो सेंड करो ना। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ऋषिकेश केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो, 88 नहीं होगा, काशवित 76 कहाँ से आ गया यार? नहीं साई, आपने भी सही नहीं बनाया, नहीं आयुष्मिता, आपने भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, अंशुल तुम्हारा एक इक्वेशन तो सही है, नहीं उसमें भी गड़बड़ है, 46 का डबल 96 होता है क्या? तुम लोग कैसी कैसी केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो यार? कुछ कुछ का सही आ रहा है, जैसे ऋषिकेश का अभी सही आया। हम्म
हाँ, सो देखो दूसरा इक्वेशन तो मैं बता देता हूँ, दूसरा इक्वेशन कैसा रहेगा। दूसरा इक्वेशन इज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, राइट। n1 m1 plus n2 m2 plus n3 m3 upon n1 plus n2 plus n3। सो टोटल मोल्स 1 दिए हुए हैं और इसका मैंने a मोल्स मान लिया, तो a इंटू 28 नाइट्रोजन का मास हो गया, देन b इंटू 46 NO2 का मास हो गया, एंड c इंटू 92 ये N2O4 का मास हो गया, और ये 55.4 दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, थर्ड इक्वेशन बताओ अभी इसके अलावा। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये दो इक्वेशन हुई है, थर्ड इक्वेशन अभी तक नहीं आया मेरे पास सही। हम्म, नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ आ रहे हैं बट नहीं। रणवीर हाँ, रणवीर ने सही डाला है, राइट। रणवीर का इक्वेशन सही है। ओके, बाकी लोग भी कुछ कुछ डाल रहे हैं, थोड़ा सा सही लग रहा है, शायद कुछ कुछ गड़बड़ है। ओके, लेट मी, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है जज करना, क्योंकि एक साथ बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं और मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ सबको प्रॉपरली। बट ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर अब क्या होगा, आप नोटिस करना। अब N2O4 NO2 में डिसोसिएट हो रहा है, राइट। इसके C मोल्स हैं, तो ये पूरा कंज्यूम होकर 2C मोल्स बना देगा, राइट। सो मिक्सचर इज नाउ N2 which is A moles and NO2 which is B plus 2C moles। ठीक है, तो अब यहाँ पर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट नोटिस करना विल बी टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो ये वापस से आ गया आपका 39 पॉइंट कितना था, ये 39.57। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, ए अपॉन मतलब ए प्लस बी प्लस 2C, एंड टोटल मास कितना हो जाएगा, ए इंटू 28 प्लस बी प्लस 2C इंटू 46। ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा और इजीली वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, आप एक्चुअली इनको सॉल्व करोगे ना, तो सेकेंड और थर्ड को डिवाइड कर देना, डिवाइड 2/3, तो न्यूमरेटर जो है ना वो कट जाएगा फॉर इजी सॉल्विंग। ठीक है, उसको आप सॉल्व करोगे तो फिर आपका सी का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। इससे आप सॉल्व करोगे तो सी का वैल्यू आपका बहुत क्विकली 0.4 आ जाएगा। ठीक है, सी विल कम आउट टू बी, तो डिवाइड 2/3 एंड सब्सटीट्यूट 1। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने सही इक्वेशन डाला हो। ठीक है, मैंने शायद गलत रीड कर लिया हो। हाँ, टोटल मोल्स अंशुल 1 प्लस सी होंगे, 2C क्यों होगा, स्टोइशियोमेट्री देखो ना राजा, कहाँ गए, ये देखो, यहाँ पर ये 1 मोल है और यहाँ पे 2 मोल है, तो कितना बनेगा, 2C मोल्स नहीं बनेगा। हाँ, फाइनल आंसर इज 0.5, 0.1 एंड 0.4। ठीक है, सी का वैल्यू 0.4 आ जाएगा, बी 0.1 आ जाएगा और ए 0.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो इन्हीं के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा सॉल्विंग में, बट या
ऑल राइट, सो गुड। नाउ होमवर्क क्या करना है आपको नेक्स्ट क्लास के लिए, वो मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द कंसंट्रेशन टर्म्स, एंड आई माइट आस्क यू टू वॉच अ वीडियो लेक्चर और टू आल्सो बिफोर यू come to the class next Saturday, actually coming Saturday, ठीक है। I'll update you guys on the group what to do next. चलो, thank you.